नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब की खबरों का। अमृतसर में गाय माता के हक में रोष प्रदर्शन किया गया। बता दें, अमृतसर के लोहागढ़ चौक को बंद करके राष्ट्रीय गौ रक्षा महासंघ और एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रोहन मेहरा ने बताया कि कुछ डेयरी वाले अपनी गाय का दूध निकालने के बाद उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं ताकि वो कूड़ा करकट खाकर अपना पेट भर सके और सड़कों पर पशुधन आ जाने से हादसों का शिकार हो जाता है, जिस पर कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर ने लिखित कार्रवाई करने की बात कही। अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਗੇਟ ਤੱਕ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਮੇਨ 12 ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਊਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਊ ਛੱਡਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਗਊ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਫਾਫੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਗਊ ਡੇਅਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਖੁਦ ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਚਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇ ਕੈਟਲ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। अमृतसर में अकाली दल के वरिष्ठ नेता विरसा सिंह वोल्टाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बता दें कि मलविंदर कंग की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल से रिश्तों का जिक्र किया गया, जहां वोल्टाहा ने कई आप कार्यकर्ताओं की न्यूज तस्वीरें भी वायरल की और बताया कि कैसे आप कार्यकर्ता नशीली दवाओं के मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं वोल्टाहा ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि 2022 के तेजबीर सिंह चुनाव में आम आदमी पार्टी की मदद की थी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਸਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਚਾੜਦੇ ਚੰਦ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਪ ਕਲੀ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭਰਾ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਓਆਈ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ वाह वास्ता नहीं रखा तो ना उन्हें। भटिंडा के कॉलोनी में सीवर के गंदे पानी भरने से निवासियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल भटिंडा के श्रफ कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी कॉलोनी में भरने से निवासी परेशान है। वही वार्ड एमसी ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन नगर निगम नहीं सुन रहा है और न ही गंदे पानी के निकासन की कोई व्यवस्था कर रहा है। साथ ही एमसी ने प्रशासन से पक्के प्रबंध की मांग भी की। मामला ये है जी, पिछे जे
ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 15-18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਬੈਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਕਿ 77 ਨੰਬਰ ਪਾਰਕ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਦਾ MC ਵੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸੀਵਰ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਮ 'ਚ। ਇਹ ਗੰਦ ਨਰਕ 'ਚ ਜਿੰਮ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ JCBਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ भी साफ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ऐसी गूंगी सर। फरीदाबाद में एक बार फिर पानी छोड़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आई हैं। दरअसल फरीदाबाद हथनीकुंड बैराज से फिर पानी छोड़ा गया और बाढ़ के हालात बनना शुरू हो गए हैं। वहीं अभी पिछले बाढ़ के पानी से लोगों को निजात नहीं मिला था कि दोबारा पानी छोड़े जाने से यमुना किनारे रहने वाले लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। वहीं देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसके लिए क्या कुछ कदम उठाता है। अभी सरपंच साहब के पास सूचना आई है कि यमुना में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो लोगों को जो है इत्तला कर दी जाए। और हमने मुनादी के लिए चौकीदार भेज दिए हैं, गांव में मुनादी करवा दी गई है और जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनसे स्पेशल जा करके वो कहने के लिए जंगल में गए हैं। पहले भी हालात बद से बदतर हो गए थे। मोहना से जो बागपुर के लिए रोड जा रहा है 2-3 जगह से टूट गया है, बिल्डिंग भी गिर पड़ी थी। तो हालात तो पहले ही बहुत ज्यादा बदतर थे, लेकिन अब की बार जो मैसेज आया है शायद इससे भी बदतर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो अपना काम कर रहा है वो हम अब भी कर रहे हैं और पहले भी किया। पहले भी हालात बिगड़े हुए हैं। आज तक हमारे खेतों में तो आज तक 5-4 फुट पानी खड़ा है और अगर ये भी पानी आ गया तो हमारी तो फसल भी बर्बाद हो जाएगी, पहले भी होगी, रही खई भी होगी, खत्म हो जाएगी। वैसे प्रशासन की कोई मदद आपको मिल पाई थी? प्रशासन की तरफ से तो कोई मदद नहीं हुई है। हालात इतने खराब हुए हैं कि हरा चारा भी नहीं रहा है और तोड़ा भी नहीं रहा है। घर के दाने भी खत्म हो गए लोगों के जो घर से बाहर बैठे हैं, गांव से बाहर फिरने के। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। कुछ जगह से ऊपर आ जाएं, कौन सरपंच की सुनता है। अच्छा। हमारे फरीदाबाद में साइबर क्राइम पुलिस की कस्टडी में आरोपी की मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल युवक का साइबर क्राइम के चलते गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि जब युवक को गिरफ्तार किया तब ही युवक की तबीयत खराब थी। तो वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक की पीट कर हत्या की गई है और अब परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। द्वारा FIR नंबर 29 दर्ज की गई थी। उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 5वां आरोपी जो गिरफ्तार हुआ था उसका नाम था शेकुल खान। शेकुल खान जब से हमारी हिरासत में आया तब से काफ़ी बीमार चल रहा था। उसको कई बारी हम 20 को जिस दिन गिरफ्तारी डाली उस दिन भी मेडिकल कराया गया। 21 को भी हमने उसका मेडिकल कराया गया जब उसकी रिमांड ली गई, पुलिस रिमांड ली गई। और 22 को शाम को उसकी तबीयत उसने सांस कम आने की शिकायत हमें करी, तो उसके बाद हम शाम को भी उसको चेकअप कराने लाए, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। आज सुबह जब हम उसको देख रहे थे तो दौरान इलाज उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसको फिर हम यहाँ पर लाए, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे हमारे साले लगते हैं। मेरा गांव सहसन है और एक्चुअली जो ये लड़का मरा है सैकुल, ये बेचारा पुलिस की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था और ये अभी तक भी इसकी तैयारी कर रही है, क्योंकि अलवर के अंदर जो एकेडमी में पढ़ाई चल रही है वहाँ पे उसका पूरा ओल्ड डॉक्यूमेंट से इसने BA फाइनल कर रखा है और बड़ा अच्छा तंदुरुस्त था। कुछ साइबर सेल का मुकदमा चल रहा था, पता नहीं कहाँ का लोगों के संग उसको जोड़ा और पुलिस खुद भी कह रही है कि नाजायज है, इसको हम गलत उठा लाए, किसी और के नाम पे हम इसको उठा के लेकर आए।
फिर पुलिस ने इसको थाने में दे दिया है। अब पुलिस एहसास कर रही है कि गलत तरीके से उठा लिया। आज तक उन्हें क्रिमिनल मुकदमा है, गाँव में आप इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, थाने लोकल में इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, कोई मुकदमा नहीं है और ना ही आज तक इस लाइन में वो रहा है। लेकिन वो बेचारा पढ़ाई कर रहा था और अभी उसकी 6 महीना पहले शादी हुई है सर। बिल्कुल बहुत अच्छा तंदुरुस्त लड़का था और इन्होंने जो पुलिस ने बेरहमी से उसको पीटा, पीट के अपनी कस्टडी में हत्या कर दी उसकी। कितनी उम्र है सर उसकी 27 साल की लगभग उम्र है अभी तक उसकी। 27 साल को पुलिस ने अपनी कस्टडी में, जो भी हमारे बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने आज कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया। तो वहीं हवाई सर्वेक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार फ्लूड कंट्रोल के लिए जमीन पर कोई फैसला नहीं ले रही है और न ही बाढ़ पीड़ितों का मुआवजा दे रही है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों को प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही और इसी बीच उन्होंने मणिपुर घटना को लेकर भी रोष व्यक्त किया। आपने कहा हमने पूरा इंतजाम किया, इतना नुकसान नहीं था, पूरी मदद की थी उस समय पशुओं से लेके, और उसी वजह से जो O2 झील है उसकी खुदाई शुरू करी थी। 4 फेजेज में उसकी खुदाई होनी थी। अगर अब 2 फेज हमारे टाइम में खुद गए थे, उसके बाद एक कस्सी ने की वहाँ, उसकी पूरी खुदाई होती, गग्गर की सफाई होती, रंगोई की सफाई होती, तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। कोई कदम नहीं उठाए, हमारे समय में कदम उठे। आपको मालूम होना चाहिए यमुना का जो बहुत सारा नुकसान, अब 3,80,000 क्यूसेक आया है। मेरे समय में 8 लाख क्यूसेक आया था, फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अपने समय पर कदम उठाए थे। कोई ठोकरें जैसे रहती हैं, कोई ठोकरें नहीं बनाई गई, कोई बंद मजबूत नहीं किए गए। गुरदासपुर से कुछ समय पहले महिला जज द्वारा नौकरी के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस केस को लेकर नई जानकारी सामने आई। दरअसल आरोपी महिला ने पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। इसके चलते अब पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 ASI के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद SHO गुरमीत सिंह ने गैंगस्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कपूरथला में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। दरअसल कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के गांव मोंठावाला के समीप मोटर पर नशा करते समय ओवरडोज से युवक की मौत हो गई। हालांकि परिवार ने ओवरडोज के आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि लड़के का कत्ल हुआ है। हालांकि पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। मेरा नाम सुखविंदर कौर, साबका सरपंच, पिंड कड़ाल खुर्द, जिला कपूरथला ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਮੁੜ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਕਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੋਢੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾ ਕਰਾਲ ਖੁਰਦ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਪਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਬਿੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਦਾ ਵਾ, पूरी मोटर से मुंडे दी डेड बॉडी ते खन्ना में देर रात हुई खुलेआम फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। पूरा मामला खन्ना के अमलोहा रोड का है, जहां सब्जी मंडी के पीछे 3 दोस्तों पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। घटना के बाद तीनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 2 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का बताया गया। हालांकि पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਏ, ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੀ ਦੜਾ ਦੜ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ 4-5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ ਆਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ।
किन्ने सट्टा लगी? मेरे लगी आ, बाकी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਢਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੋਈ ਬੁਲਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬੁਲਟ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੂੰਡ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਵੇਂ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵੂੰਡਸ ਟਾਈਪ ਵੂੰਡ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਟੀ 2 ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਦੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਭੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ मतलब डंडे वगैरह के नाल जिहड़ी है गड्डी। खन्ना में कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने घायल नौजवानों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। दरअसल सिद्धू लुधियाना में कांग्रेस के सत्याग्रह के बाद पटियाला लौटकर खन्ना के गांव कौड़ी से गुजर रहे थे, जहां पर बाइक सवार युवक को खून से लथपथ देख उन्होंने भर्ती करवाया। बताया गया कि युवक का एक्सीडेंट टक्कर की वजह से हुआ था। वहीं अब परिजनों के कहने पर युवक को बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। गाले पासे काफ़ी बंदे खलोते ही देखा जो लागे आन के ते ये मुंडा मोटरसाइकिल के थले ही वो 10-15 जने खलोते पर किसी ने कढ़िया नहीं। सिद्धू साहब ने क्या रोको रोको, सिद्धू साहब ने खुद नाल आप जाके जिप्सी के उत्ते लदा के ते हॉस्पिटल भेजा। मैं अजे ड्राइवर जा रहा सिद्धू साहब ने। असी लुधियाने तो आए पटियाले नूं जा रहे हैं। हाँ, दूलो साहब की कोठी गए। राजिंदर सिंह नाम का लड़का है नाभा एरिया का, ਇਹਦਾ ਕੌੜੀ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ है जी। लुधियाना में भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल लुधियाना के घंटाघर के पास मजदूर संघ के स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर मजदूर नेताओं ने शिकागो में मरे मजदूरों को श्रद्धांजलि दी, जहां मजदूर नेता फिरोज मास्टर ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे देश में मजदूरों का शोषण हो रहा है पर सरकारें चुप बैठी हैं। मजदूरों को हमेशा ही अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महेंद्रगढ़ में भाजपा ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें, महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा द्वारा महेंद्रगढ़ विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी त्रिपुरा और पूर्व मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों की उपलब्धियों के बारे में लोगों को अवगत किया गया। पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के प्राण केंद्र है और हरियाणा में अब तक 60% के ऊपर पन्ना प्रमुख बन चुका है और मैं आशा करता हूँ ओम प्रकाश दिनकर जी अध्यक्षता थे बहुत कम समय में सभी प्रदेश की पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जाएगी। और मनोहर लाल खट्टर जी जिस तरीके के मुख्यमंत्री के नाते निष्पक्ष एक सरकार चला रही है, स्पष्ट सरकार चला रहा है और साथ ही साथ ओम प्रकाश धनखड़ जी और उनके टीम के माध्यम से संगठन को मजबूती। और आज मैं महेंद्रगढ़ में रामविलास जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगभग 4000 पन्ना प्रमुख सुबह 9 बजे से लेकर अभी 3:30 बजे बैठे हैं, वो काफ़ी मैंने तारीफ के विषय है। और ये महेंद्रगढ़ में भूमि में ही हो सकता है। ये भूमि त्याग का भूमि है, ये भूमि वीरों का भूमि है, ये भूमि संस्कार का
महेंद्रगढ़ में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। दरअसल महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा के पंचायत घर में पिछले 5 साल से चल रहे हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र पर नाराज गांव के ग्रामीणों ने तालाबंदी की। बता दें, ग्राम पंचायत ने हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र को 10 एकड़ भूमि दी थी कि जब तक भवन नहीं बन जाता तब तक संस्थान गाँव के घरों में शुरू होगा और केंद्रों पर जो कर्मचारी लगाए जाएंगे वे इसी गाँव के होंगे। लेकिन मांगे पूरी होने पर गाँव वालों ने धरना बोल दिया। रिवासा गांव की समस्त सरदारी जो है, जो यहाँ पे पशु चिकित्सालय है, उसके बाहर ताला लगा के सरकार से अपनी जायज मांग, जो कि तर्कपूर्ण मांग है, जो वादा सरकार ने किया था, इस संस्था को खोलते वक्त ग्राम पंचायत की जो जमीन थी उसको सरकार ने इस वादे के साथ लिया था और पंचायत ने पूरा सहयोग उस समय किया था कि एक अच्छा कदम है ये सरकार का, इसमें हम सहयोग करते हैं। और बदले में एक छोटा सा जो कि ग्रुप डी की भर्तियों का आश्वासन दिया था कि इसमें प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले गांव के जो युवा हैं उनको ग्रुप डी की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी और जो बच्चा एलिजिबल होगा, जो युवा यहाँ का एलिजिबल होगा, पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाद में दूसरी जगह। जो प्राथमिकता है उसमें यही है कि गांव के जो युवा हैं उनको इसमें करना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ पर वो पंचायत भवन के लिए जमीन है, ये पंचायत है, ये गांव के लिए है, ना कि हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल ऑलरेडी तैयार करें और यहाँ से इसको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। और हमने वीसी से भी कह दिया, यहाँ के कर्मचारियों को भी कई बार कह दिया, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही। जो कर्मचारी गुपचुप तरीके से लगाए जाते हैं, हमारे सुनने में आया है, उनसे पैसे लेकर के कोई एक व्यक्ति विशेष है जो 4 या 5 उसका साड़ा, उसकी बुआ का लड़का, उसके 2-3 रिश्तेदार और जो यहाँ पर भर्ती कर दिए गए। भाई भतीजावाद चल रहा है। हमारे गांव के युवा बेरोजगार है। हमारी ये पहली डिमांड है, सारे के सारे गांव के ही लगाए जाए योग्यता के आधार पर, कोई भी, और उनको तुरंत हटाया जाए। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक हम को खत्म नहीं करेंगे। ये हमारी पहली मांग है और जल्द से जल्द। देखिए, हमारे यहाँ 7 किले के करीब 10 किले के करीब हमने पंचायत भूमि दी और 0 पॉइंट पे दी और एक एग्रीमेंट हुआ पंचायत के साथ कि जो भी तृतीय और 4th क्लास के बच्चे लगेंगे वो XYZ रिवासा गांव के लगेंगे, बाहर का कोई बच्चा नहीं लगाया जाएगा। जबकि हमने सुना है कि आज 3 बच्चों की ज्वाइनिंग करवाने वाले थे जो बाहर से हैं। पहले भी 2 बच्चे बाहर से लगा चुके, वो भी बाहर से लगे हुए हैं। हम उनको हटाने की भी मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो बाहर से लगे हुए हैं उनको हटा करके रिवासा के किसी भी गांव के बच्चे लगाए। नाहन में लगातार हो रही बारिश से रास्ता ठप हो गया है। पूरा मामला नाहन के रेणुका हरिपुर धार की मुख्य मार्ग का है, जहां पिछले 2 दिनों से भारी बरसात के चलते मार्ग ठप हो गया है। वहीं मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित होने से किसान भी मार्ग पर फंस गए हैं। साथ ही मार्ग के बंद होने के चलते पर्यटकों को भी मार्ग खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। जगह जगह मलबा भरने के कारण जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग को खोला गया। जैसे फंसे हुए जी हम यहाँ पर, और पीछे गाड़ी है टमाटर की और शिमला मिर्च की, पर कम से कम 6-7 साल के बाद तो टमाटर का रेट आया, बड़े मुश्किल से वो गाड़ी पीछे फंसी हुई। कम से कम 2-2.5 लाख का नुकसान हो रहा है हमारे तो, और ये प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही इसके लिए। हमारी प्रशासन से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसको ठीक करें और ताकि हम आगे मंडी तक जा सके अपना माल लेके, नहीं तो यहीं सड़ जाना। यहाँ से कम से कम भी इसे इसके पीछे 8-9 किलोमीटर में कम 7-8 जगह खराब है और लगी हुई मशीनें, पर मशीनों से भी कुछ नहीं हो रहा है और परे को भी लगी हुई मशीन। आगे तो ठीक है, नहाने के लिए पता नहीं शायद। परसों रात से बंद हुई, बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण। मतलब हमारे एरिया में, मैं वर्क इंस्पेक्टर हूँ PWD में, तो हम कल सुबह जैसे ही दुसड़का से और नेली तक शाम तक 2 JCB लगा के हमने 10 किलोमीटर का रास्ता खोल दिया था। इसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो इससे आगे भी बहुत ज़्यादा बंद था और अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 JCB हमने लगाई हुई है और 2 JCB नीचे खादरी से ऊपर को, इस रोड पे 4 JCB काम कर रही है अभी। और आज शाम को हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरा इसको खोलने की कोशिश करेंगे ताकि रोड बहाल हो जाए, लोगों को परेशानी ना हो। नूह में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। बता दें, नूह जिले के सालाहोड़ी, आलदोका, जोगीपुर, मालब,
आकोड़ा इत्यादि गांवों में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब जननायक जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो मेवात जिले का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। 30 तारीख को फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की मोहना मंडी में एक मीटिंग आयोजित की जा रही है, उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आया है। ये तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ही निर्णय होता है। वो बड़ों का काम है, वो आगामी निर्णय उनका करना है। के जरिए बुधवार को फिर आमंत्रित किया है, वो बैठ करके फैसला करेंगे। मैंने कहा है ना, बुधवार को उनको बुलाया है, आमंत्रित किया, बैठ के बात करेंगे। भाखड़ा बांध नगर के बड़े जलस्तर को लेकर आज सीएम भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, भारी बारिश की संभावना नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 दिन में 9 फीट पानी पहुंचाओ। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नदी और नहरों को चैनलाइज किया गया है और पूरी जानकारी मिलने के बाद किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। साथ ही नंगल में टूरिज्म बनाने की बात भी कही। हिमाचल ने पानी रोक लिया, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ BBMB 7.19 ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਮ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ੱਲੇ ਡੈਮ ਵਾਲਾ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਆਪਣਾ ਬਿਆਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਭੜੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ सरमाला में लूट और स्नैचिंग के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सरमाला पुलिस ने भंगला गांव में लूट और स्नैचिंग को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 मेंबर को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए। बताया जा रहा है, इन चोर ने ITI की परीक्षा देने वाले 11 छात्रों के मोबाइल फोन चुराए थे। वहीं इन आरोपियों पर नशे की लत के भी आरोप है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी है। SHO ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ITI ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ खोए हुए ने। संगरूर पहुंचे बीजेपी के नए अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अकाली दल समझौते को लेकर बड़ा बयान नहीं दिया। कहा कि समझौते के लिए नहीं चुना गया हूं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वो पंजाब के हर वर्ग से जुड़कर केंद्र सरकार की हर अच्छी नीति को साझा करेंगे। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि वो पंजाब में बीजेपी के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वर्कर की कमिटमेंट साहब बीजेपी का वर्कर है, बड़ा विचारधारा नाल जुड़ा है, बड़ा कर्मठ ते बड़ा मेहनतकश वर्कर है। तो चाहे हो सकता है 23 सीटां के बाद बहुत सारिया सीटां के उत्ते बीजेपी का कोई संगठन या उत्थे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ना होवे, पर बीजेपी के समर्थक हरेक पासे बैठे सन। उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के अगे तुरांगे।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਖਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।